So the topic we are today talking about is brand. So do you all know what brand exactly is? So what do you mean by brand? If I would have to ask you, so anyone? What is a brand? Yes. So brand is A basically brand is a perception in Something the which So in the represents a consumer's mind. founder. sorry. It's something which represents of the business or the founder or the whole team. According to me, brand is the feeling which a company gives to a customer, to their customers. So if you buy a product, how do you feel about the product is something, according to me, what is brand is. So if you buy an Apple product, you would always feel special, as this is an most innovative product of, you can say that. So this is what brand is for me. So if you look at the formal definition of brand, it is not about logo name which everyone tells us about. It's about the strategy of messaging so delivering your message to the customer. So it is more about that rather than the logo, name and everything. These are more of a medium, to deliver your message to the customers. So if you want to show yourself as a brand promoting happiness, for example, red color is used often to promote happiness. Coca-Cola uses that, Zomato uses that. And if you talk about blue color is more for trust. Banking companies, the companies in finance sectors especially use that. So it is more of the way to deliver your message, logos, names, colors, these things. But branding is more of a strategy which you use to deliver your message to your customers. It helps us to be recognized in a crowded market, that this is a product which I need to buy for a customer. So this is the agenda of today's meeting. We are talking about 10 things. First one is the importance of brand identity. Second is identifying your competitors so that you can create a more uh, a better branding strategy and be better than your competitors. Show yourself better than the competitors. Third one is the determining a target market. So how do you determine which market should you target? A fourth one is elements of brand identity, what brand identity actually is. And fifth one is crafting your own brand value proposition. Sixth one is case study. We are talking about Zomato and Apple. Seventh is analyzing your brand's target. And eight, marketing strategies for branding, which you need to understand to utilize the whole branding thing to your own own company, own brand. And ninth is strengthening your business value with branding. And 10th, we would also know about the purpose of brand identity. So let's first start with the brand identity. As I said earlier, logo, design, colors, these things are medium of showing your medium of delivering the message you want to deliver to your customers. So it is more about that. But the main components of these are visual identity, how you want to show your brand, the tone of your brand overall, how do you want to feel, the emotional connection, how do you want your customers to feel about your brand. So these are major components of brand identity. So let's say for an example, if we talk about Zomato, so when we order from Zomato, how do you feel? What is the most important thing? Do you choose Zomato rather than Swiggy? So it is for most of the customers, it is about feeling the ease of ordering from Zomato, or feeling that the company aligns with you, or things like that. So this is what brand identity actually is. So why is branding important? So for this, I would give you a simple example. आटा हम लोग सब जानते हैं, आटा खुले में बिक रहा था, बहुत सालों से बिक रहा था. देन केम अ कंपनी जिसने उस पे आशीर्वाद लिख दिया, एंड जो आटा 20 रुपए का बिक रहा था उसको वो लोग 35 का बेचने लगे, 35 रुपीज, 15 रुपीज एडिशन कर पाए फॉर प्रॉफिट्स. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? वो ट्रस्ट जो क्या कहते हैं खुले हुए आटे में नहीं था, वो ट्रस्ट उस कंपनी ने उस पैकेजिंग के साथ दिया कि
जो क्वालिटी होगी वो कंसिस्टेंट होगी, जो यू कैन से दैट जो वेट होगा वो कंसिस्टेंट होगा, थिंग्स लाइक दैट, कि वो क्वालिटी मेंटेन होगी, ये सारा जो है वो ब्रांड हम लोगों को देता है। पीपल लोग खरीद भी रहे बिकॉज दे वांट एक ईज चाहते हैं लोग, एवरी वांट्स की हर चीज के बारे में मुझे उतना स्ट्रेस ना लेना पड़े कि आटा अच्छा है या नहीं है, आई ट्रस्ट दिस ब्रांड, हम इससे खरीद रहे हैं। तो मेजरली 4 एलिमेंट्स मोर फॉर कंपनी, 4 इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के। फर्स्ट, इट बिल्ड्स ट्रस्ट फॉर द कस्टमर, कस्टमर एक ब्रांड पे बिलीव करते हैं। दूसरा, इट ड्राइव्स लॉयल कस्टमर्स, सो मोस्ट प्रोबेबली जब होता है ये, मोस्टली कुछ जो ब्रांड्स होते हैं उनके लॉयल कस्टमर होते हैं, दे डायरेक्टली बाय फ्रॉम देम विदाउट थिंकिंग अबाउट एनी अदर ब्रांड। तो दिस इज क्रिएटेड थ्रू ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज। थर्ड वन, इट इम्प्रूव्स रिकॉल वैल्यू। सो जब आपको कुछ खाने का मन करता है, यू डायरेक्टली ओपन Zomato without thinking about anything else. So it adds recall value, मतलब जो basically. And fourth, it support business goals. Business goals, as I said, 20 रुपए का आटा 35 का बेच पा रहा हूँ, 15 रुपीज एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांडिंग पार्ट। उसमें 5 रुपीज का आपका हो सकता है कि सोर्सिंग का या फिर क्वालिटी कंट्रोल का खर्च बढ़ जाए, बट स्टिल यू आर एडिंग 10 रुपीज टू योर रेवेन्यू। So the first step is to identify your competitors. सबसे important होता है अपने competitors को पहले जानना कि what they do, उनका नाम, उन्होंने नेमिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज किया है, उसके बाद उनका कोर स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है। बिकॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू बिल्ड सम ब्रांड इज टू स्टार्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स वीकनेस। आपके कॉम्पिटिटर का जो वीकनेस है वो आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है, तो जो कस्टमर्स उनसे नाराज हैं वो आपके कस्टमर्स बन जाते हैं। फर्स्ट लेवल आपको एक एज मिलता है इन द न्यू मार्केट। इसका बेसिक स्टेप्स है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च कर सकते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन। उसके बाद उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का एनालिसिस कर सकते हो। ओवरऑल ये टेम्पलेट हम लोग यूज कर, कॉम्पिटिटर कौन है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है। सो वी कैन आस्क दिस टू कस्टमर्स डायरेक्टली एंड वी कैन आल्सो डू ऑनलाइन सर्वेज, थिंग्स लाइक दैट। सो अगर आपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च कर लिया, नाउ यू वांट टू टारगेट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑडियंस जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बेबी क्लोथ्स बना रहे हो तो आपका जो टारगेट कस्टमर होना चाहिए वो कौन होगा? वो बेबी नहीं होगा। योर कस्टमर बेस जो होगा वो कंज्यूमर है आपका, बट कस्टमर बेस जो जिसको आप सेल करोगे वो मॉमीज होंगे, उनकी माँ होंगी, हो सकता है फादर्स होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, ओवरऑल आप उनको टारगेट करोगे। तो बेसिकली हम लोग 4 चीजों का रिसर्च करते हैं। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, हम लोग किस ज्योग्राफी में ज्यादा हम लोग रिलाई करना चाहते हैं। अगर आप नॉर्दर्न साइड ऊपर जाते हो तो उस साइड आपको ज्यादा विंटर क्लोथ्स पे फोकस करना होगा, सदर्न साइड में आपको ज्यादा समर क्लोथ्स पे फोकस करना होगा। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जैसे बताया कि कौन से जेंडर के लोग आपका प्रोडक्ट ज्यादा खरीद रहे हैं। जैसे जो मॉम्स होती है वो ज्यादा, अगर बच्चों का कपड़ा खरीदना होगा तो मॉम्स ज्यादा खरीदेंगे रादर देन डैड्स। सो वहां पे हम लोग जेंडर का ये कर सकते हैं। उसके बाद उनका एज ग्रुप क्या होगा, 30 से 40 का एज ग्रुप आपको टारगेट करना है, क्या आपको 40 to 50 का एज ग्रुप टारगेट करना है, डिफरेंट कस्टमर सेगमेंटेशन। थर्ड इज साइकोलॉजी सेगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है बेसिकली कि जब फर्स्ट ट्राई नहीं था, वी हैड मल्टीपल ऑप्शंस टू बाय बेबी क्लोथ्स, बट अभी के जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं, दे वांट टू बाय क्लोथ्स जो अपने बच्चों के लिए वो बेस्ट फिट हो, क्वालिटी, पहले क्वालिटी मैटर करता था, बट वो जो डर था वो हमेशा रहता था कि अगर इसमें बच्चों को रैश हो गया, ये हो गया, वो सारी चीजें फर्स्ट ट्राई ने ऐड करी, वो सारी चीजें नहीं होंगी, उनके कपड़े टेस्टेड होते हैं, ये सारी चीजें। तो ये साइकोलॉजिकल सेगमेंटेशन आप कर सकते हो कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हो, उसके कौन से डर पे फोकस करना चाहते हो। उसके बाद बिहेवियरल सेगमेंटेशन, जैसे आपके जो कस्टमर्स है उसका परचेज हैबिट्स क्या है, वो लोग ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑफलाइन खरीदते हैं, कहाँ से प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, वो सेगमेंटेशन। ये 4 सेगमेंटेशन करके आपको पता चल जाएगा कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे मैंने बताया कि ये सारे मीडियम्स होते हैं जिससे आप अपने ब्रांड को किसी कस्टमर के सामने पोर्ट्रे करते हैं। लोगो आइडेंटिटी, जिसमें आपको स्पेसिफिकली मेमोरेबल लोगोस बनाने, आपका लोगो मेमोरेबल होना चाहिए सो दैट योर कस्टमर रिमेंबर्स दिस। जितना कॉम्प्लेक्स लोगो होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगा फॉर कस्टमर टू
learn that. कुछ कंपनीज के लोगो जानबूझ के कॉम्प्लेक्स होते हैं सो दैट यू कैन फील द लग्जरी, कि उस लोगो में इतना लग्जरी है तो हो सकता है ये प्रोडक्ट भी उतना लग्जरी हो, और उस टाइप से सम कंपनीज डू, वो कंपनी जानबूझ के वो चीज करती है बिकॉज उनका जो स्ट्रैटेजी होता है वो डिफरेंट होता है इस चीज को लेके. कलर आइडेंटिटी, सम कंपनीज डू मिक्स कलर, सम कंपनीज डू सिंगल कलर्स. जैसे कोको कोला रेड पे फोकस करते हैं बिकॉज उसका जो ब्रांड स्ट्रैटेजी है वो हैप्पीनेस है, वो ज्यादा फोकस उस चीज पे करना चाहते हैं. और पेप्सी ब्लू पे बिकॉज पेप्सी इज डिफरेंट, दे वांट कि हमारा जो ड्रिंक्स है वो दैट वुड बी लाइक दिस. सो ये सारा स्ट्रैटेजी, कलर स्ट्रैटेजीज होते हैं. थर्ड इज ब्रांड एलिमेंट. ब्रांड एलिमेंट का बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन का जो कुत्ता हुआ करता था, पग. एवरीवन सेज दैट वोडाफोन का कुत्ता. सो इट इज लाइक दैट. These are some brand elements we use. वो basically लोगो में भी कुछ elements होते हैं जो हम लोग use करते हैं. जैसे at Oho Living we use infinity signs very much because this represents growth at our company, which we give to our customers if you are part of our ecosystem. So अपने ब्रांड का जो हम लोग ओवरऑल वैल्यू प्रोपोर्शन का बात करते हैं, so हम लोग अपने ब्रांड का जो मेन वैल्यू है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर कस्टमर पेन पॉइंट. कस्टमर्स का पेन पॉइंट समझना जरूरी है कि कस्टमर को किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, किस चीज का सबसे ज्यादा दर्द है. दूसरा चीज, हाईलाइट हाउ योर ब्रांड सॉल्व्स दिस. इसमें आपको अपने ब्रांड के थ्रू उस चीज को, उस सोल्यूशन को लोगों तक पहुंचाना है कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये हमारा सोल्यूशन है जो आपको इस इतने कम समय में ये सारा चीज सॉल्व करके देता है. उसके बाद बेनिफिट्स क्लियरली आपको मेंशन करने हैं. जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि at Oho Living we help everyone to find accommodation in less than 10 minutes. ये हमारा ब्रांड प्रोपोजिशन है कि आप जैसे घर ढूंढने जाते हो तो आपको 1 मंथ का समय लगता है घर ढूंढने में, 1 मंथ नेक्स्ट 1 मंथ लगता है उसमें सेटल होने में. बट एट Oho Living everything is settled. आप जस्ट जाओ, शिफ्ट हो जाओ, आप 10 मिनट्स, जो 2 मंथ का पीरियड है हम लोग 10 मिनट्स तक लेके आ रहे हैं. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द ब्रांड व्हिच यू शुड कम्युनिकेट क्लियरली. उसके बाद स्टेप्स जो हम लोग को करना चाहिए अपने ब्रांड का आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए, सबसे पहला रिसर्च एंड एनालाइज. जैसे मैंने बताया कॉम्पिटिटर्स का मार्केट ट्रेंड्स क्या, कॉम्पिटिटर्स कौन है, मार्केट ट्रेंड्स क्या है, आपको किन चीजों पे फोकस करना चाहिए टू बिकम डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स. जैसे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स जो इलेक्ट्रिक जो स्कूटी ब्रांड्स में थे, बजाज एंड हीरो, एवरीवन वाज लाइक दैट. बट ओला क्रिएटेड अ डिफरेंट ब्रांड स्ट्रेटजी अपने कॉम्पिटिटर्स से. वो कॉम्पिटिटर्स का जो ब्रांड्स था वो स्पेसिफिकली टारगेटेड था, यू कैन से दैट ओल्ड पीपल, ओल्ड जनरेशन पे. बट न्यू जनरेशन को न्यू एनर्जी चाहिए थी. ओला फोकस्ड ऑन दैट, ओला वर्कड ऑन दैट, और उन्होंने अपना ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ओवरऑल यंग जनरेशन के अराउंड बिल्ड किया. मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जैसे ओला ने ईवी ट्रेंड्स को पकड़ा, ईवी के ट्रेंड को यूटिलाइज किया. डिफाइन कोर वैल्यूज, व्हाट आर योर ब्रांड कोर वैल्यूज. आप ओवरऑल आपका ब्रांड किस स्टे करता है. जैसे ओला, फॉर ओला, ओला ओवरऑल इकोसिस्टम का बात करता है कि ओला का इकोसिस्टम में अगर आप आपने गाड़ी ले ली तो आपको यहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस इतने मिलेंगे, ये सारी चीजों के बारे में बात करती है. कंफर्ट ये है. उसके बाद वो सारी चीजें, डेवलप विजुअल एसेट्स जो ओवरऑल लोगो, कलर पैलेट, टाइपोग्राफी, आपका ब्रांड का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. और दिस शुड बी, आपका जो ब्रांड का विजुअल एसेट्स होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. कंसिस्टेंसी इज द कोर, क्योंकि लोगों को नाम याद नहीं रहते हैं, लोगों को कुछ भी याद नहीं रहता, बट लोगों को बहुत आसानी से याद रहता है एक पैटर्न जो आपके लोगों का होता है, आपके ब्रांड का होता है, वो पैटर्न याद रहता है लोगों को. वी आर वेरी गुड एट लर्निंग पैटर्न्स रादर देन नेम्स और वो सारी चीजें. उसके बाद आपका ब्रांड वॉइस क्या है, ब्रांड टोन क्या है, आपको मैसेज क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आपका लोगो और वो सारी चीजों में. थर्ड, हम लोग बहुत बार होता है कि स्टार्टिंग सकता है सारी चीजें हम लोग सही ना करें, धीरे धीरे टेस्ट करते करते. जैसे मीशू हैड अ लोगो जो पिंक कलर का हुआ करता था, बट देन दे रीब्रांडेड मीशू एंड दे क्रिएटेड अ लोगो जो मोर ऑफ ब्लेंड ऑफ वायलेट एंड पिंक है. सो दे वांटेड टू टारगेट डिफरेंट कस्टमर ऑडियंस, बिकॉज पहले मीशू वाज अ सोशल कॉमर्स जो स्पेसिफिकली हाउसवाइफ्स पे फोकस करते थे. दैट्स व्हाई दे हैड पिंक कलर. Then they shifted their customer base from that to different customer base. They became an e-commerce site.
दैट्स व्हाई दे बिकेम मोर ऑफ मतलब सब लोगों को साथ लेके चल, सो डिफरेंट दोनों जेंडर को साथ लेके चलने वाला चीज. So that's why they rebranded. And fourth one is launch and promote. So you would have to promote your logos everywhere, your names everywhere, so that recall create हो पाए around people. जब वो आपके ब्रांड के बारे में कहीं पे देखे, जब उस सर्विस की जरूरत पड़े, they would look at your brand and they would say कि ये मुझे चाहिए, ये ब्रांड मुझे चाहिए, ये ब्रांड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. So let's understand with an example. Zomato का जैसे हम लोग बात करें, ब्रांड आइडेंटिटी, बोल्ड रेड कलर, विटी, उसका रिलेटेबल सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये Zomato का ब्रांड आइडेंटिटी ओवरऑल. बोल्ड रेड कलर होने से they want to promote happiness. They make silly jokes जो जानबूझ के वो लोग करते हैं. Their customers can connect that way. और इनकी मेजर स्ट्रैटेजीज वो मीम्स एंड ह्यूमर के अराउंड होती है, so that they can make their customers feel happy, which is their core value. और इनका जो इमोशनल कंसिस्टेंट जो विजुअल अपील रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है ओवर अक्रॉस सारे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स. हर जगह जोमेटो का जो ओवरऑल मैसेज होता है वो सेम ही होता है, जिसके वजह से इनका जो कस्टमर रिकॉल और लॉयल्टी है इनके कॉम्पिटिटर से ज्यादा है. सो दैट इफ यू लुक एट कि जोमेटो का जो यूजर बेस है वो मेजरली किस वजह से है, सो इट इज मोर अबाउट कि वो लोग ज्यादा ब्रांड से कनेक्ट कर पाते हैं. दे हैव रिसेंटली जो शिफ्ट किया है उन्होंने लॉन्ग टर्म में, वो सारा चीज वी कैन सी दैट. एट एप्पल दे वांट टू प्रमोट मिनिमलिस्ट डिजाइन एंड प्रीमियम पोजीशनिंग. उनका जो पोजीशनिंग होता है वो उन कस्टमर्स के लिए होता है हु वांट प्रीमियम सर्विसेज, प्रीमियम प्रोडक्ट्स. बट लॉन्ग रन में क्या होता है कि इफ यू आर sophisticated customer, so आपका जो overall you can say that identity वो increase हो जाता है, value जो, that's what Apple focus. इस वजह से लोग Apple phones flaunt कर पाते हैं, Apple के products flaunt कर पाते हैं, because long run में क्या हुआ कि लोग Apple के साथ overall जो rich mentality होता है या फिर sophisticated mentality होता है उसको link कर लोगों ने, and that's why Apple has cult following, because they had the ecosystem and everything like in place for that. So analyze your brand's target market. So हम लोगों को overall जो समझना है कि हमारा brand का target market क्या है, इसके लिए हम लोगों को पहले customer preferences का data collect करने होंगे, so that customers को क्या पसंद है, क्या पसंद आ रहा है हमारे brand के बारे में, क्या पसंद आ रहा है competition के brand के बारे में, and then customer को segment करना है कि these customers are looking at this product, this customer is looking at this product, उनका जो इस प्रोडक्ट को खरीदने का ये रीजन है, इनका ये प्रोडक्ट खरीदने का ये रीजन है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट करंट B2C सिनेरियो जो ओवरऑल मार्केट में हो रहा है अकॉर्डिंग टू, मतलब ओवरऑल इफ यू लुक एट मेजरली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सो वी हैव ब्रांड्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, गार्नियर, पॉन्ड्स, वी हैव दीज ब्रांड्स. बट व्हाट हैपेंड टू न्यू ब्रांड्स? न्यू ब्रांड्स का जरूरत क्या था? तो वो मेजरली फोकस कर रही थी स्पेसिफिक कुछ चीजों पे. दे वर बेसिक, दे आर नॉट फोकसिंग एट एनीथिंग स्पेसिफिक. स्किन टाइप पे फोकस नहीं कर रहे थे, दे वर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर एवरीवन. देन न्यू D2C ब्रांड्स आए, दे स्टार्टेड टू फोकस ऑन specific skin types, specific hair types. So there is a brand called Arata. Their most hero product is something which is related to curly hair, I think. So this is a brand value proposition they created. So they created around a specific type of customer base, and they created a customer segment around that. And third one is tailoring brand to each segment's need. जैसे मैंने कहा कि specific needs के लिए हम लोग different brands लोग जो connect कर सके. जैसे Zomato has Zomato for food delivery, and they have Blinkit for grocery delivery. They have Bistro for 10-minute food delivery, which we call. उसके बाद they has Hyperpure for restaurants and things like that. So मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम लोग यूज करते हैं ओवरऑल ब्रांड को, आइडेंटिटी को लोगों में पॉपुलर करने के लिए. सबसे पहला है अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोशल मीडिया है. यू हैव टू बी ऑन सोशल मीडिया. आपको अपने ब्रांड का जो मैसेज है वो क्लियरली सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट यू कैन से दैट रील्स के थ्रू, कराजल्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आपको कस्टमर्स तक पहुंचाने. कंटेंट मार्केटिंग इज अ गुड थिंग, मतलब वो बहुत टाइम से वर्क कर रहा है.
शुरू से वर्क करते आए और अभी भी वर्क करेगा, बिकॉज इट एड्स वैल्यू टू योर कस्टमर्स लाइफ. द बेस्ट एग्जांपल इज फिनसॉट्स. लास्ट सेशन में भी हमने बात करी थी उसके बारे में. देयर कंटेंट इज टॉप नॉच. कस्टमर्स ने करा उनसे, उसके बाद लॉन्ग रन में उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो उस कंटेंट के अराउंड था. पेड एडवर्टाइजिंग विच वी डू, मोस्ट ऑफ कंपनीज क्या करती है, हर जगह अपना लोगोज दिखाती है. देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, सो दैट लोगों को के अराउंड रिकॉल क्रिएट हो सके. सम कंपनीज आल्सो डू इवेंट्स जहाँ पे लोगों को आपके ब्रांड के बारे में, आपके ओवरऑल कंपनी के मेन कोर वैल्यूज के बारे में पता चलता है. These are specific techniques which we use. First, channels decide करना है कि आपको किन किन channels पे जाना है. Second, आपको किस टेक्निक से उनके साथ काम करना है. यू कैन डू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर आप सोशल मीडिया कर रहे हो, या फिर खुद का कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. थर्ड वन इज मेट्रिक्स टू ट्रैक. क्योंकि फर्स्ट आप अगर चैनल बना लेते हो, आप टेक्निक्स बना लेते हो, बट आपने अगर मेट्रिक्स नहीं बनाए कि आप इसको ट्रैक कैसे करोगे, तो लॉन्ग रन में आपको पता ही नहीं चलेगा आपका ब्रांड का इम्पैक्ट क्या है ऑन कस्टमर्स. सो दिस एक्चुअली, उसके बाद जैसे मैंने बात करा था पीछे कंसिस्टेंसी के बारे में. वी वुड हैव टू फोकस ऑन कंसिस्टेंसी बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू वुड हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर कस्टमर्स सो दैट दे कैन रिमेंबर योर ब्रांड. एक बार में किसी को याद नहीं होगा, 2 बार में किसी को याद नहीं होगा, 3 बार में किसी को याद नहीं होगा, बट 5वें बार में लोगों को याद हो जाएगा. और देन रिकॉल वुड स्टार्ट गेटिंग हैपन. लोग, जैसे स्टार्टिंग में एक ब्रांड आया चीनी का, आई थिंक मधुर सुगर, something like that. They started with advertisements directly. They started, वो किसी एक बड़े ब्रांड का पार्ट थी, that's why they were able to afford that. But उससे क्या हुआ, लोगों को मधुर सुगर के बारे में पता चला. They had single value proposition की जो खुली चीनी होती है वो खराब हो जाती है बरसात में, वो that मतलब वो गंदा लगता है और वो सारी चीजें. They had untouched sugar. वो उनका बेसिक वैल्यू प्रोपोजिशन था. दे मार्केटेड दैट ऑन टीवीज एंड देन उनका रिकॉल क्रिएट हुआ और उनको लोकल वेंडर्स ने खरीदना शुरू किया. सो डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदना शुरू किया एंड देन कस्टमर्स स्टार्टेड टू आस्क कि मुझे मधुर का शुगर चाहिए, एवरीथिंग लाइक दैट. एंड थर्ड वन इज इन अपडेट करना सो दैट you can provide best quality to your customer in long run. Because ब्रांडिंग में मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट में गलती कर दो, छोटा मोटा गलती कुछ भी कर सकते हो, बट इन लॉन्ग रन यू हैव टू इटरेट और वो प्रोडक्ट उतना आपको बेस्ट बनाना है फॉर द कस्टमर. एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इन लॉन्ग रन अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रख सकते हो, दैट वुड ऐड वैल्यू टू योर ब्रांड. सो बेसिक पर्पस जो होता है ब्रांडिंग का, वो इंक्रीज ब्रांड वैल्यू, हेल्प्स ब्रांड बिजनेस. क्योंकि अगर आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा होता है तो यू कैन चार्ज योर कस्टमर्स मोर, यू कैन ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ. उसके बाद आपको अगर आपका ब्रांड का रिकॉल अच्छा है, यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस वेरी इजीली. आप दूसरे शहर में तुरंत लॉन्च कर सकते हो. कस्टमर वुड नो योर ब्रांड एंड दे वुड डायरेक्टली बाय इट फ्रॉम यू. तो फर्स्ट लेवल पे जो आपका खर्च होता है फॉर मार्केटिंग वो बच जाता है. और ये ओवरऑल कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव करता है बिकॉज कस्टमर्स आर हैप्पी अबाउट प्रोडक्ट because they connect so much from the brand to the brand. So thank you everyone.